Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 6, healthy food. So students, in this chapter, we will study about healthy food items. What are the healthy food items that we use to eat to keep our body fit and healthy? So, what are the food categories we should put in the category of the healthy food? How, however, healthy food protect us from different diseases, and what are the healthy food diet, and what are the healthy food chart? These are all things we should discuss in our chapter. Now, students, look at the learning points that we discussed in our chapter. That is, food groups, meals in a day, good eating habits, sources of food, and healthy eating. Now, students, get ready for the exercise. Look at the picture given below. Write P for food items we get from plants and A for the ones we obtain from animals. So, students, look at these all images and find the food items which we obtain from plants and write the P from it. And look at the images which we obtain from animals and write A for that. Now, students, look at the first image. First image is butter. So, students, you all know that butter is obtained from animals. So, put A here. Next image you should see is that meat. Meat is obtained from animals. So, write A here. Next image you should see that is fruits, vegetables, cereals, pulses. These all items are obtained from plants. So, write P here. Now, next image you should see is curd. Curd is obtained from animals. So, write A here. Next image you should see is an apple. Apple is a fruit and a fruit is obtained from plants. So, write P here. Last image you should see is rice. Rice is obtained from plant. So write P here. Now, students, if you are exercise, let's begin the chapter. We all need food. Food gives us energy to work and play and make us active. You all know that energy means strength. Strength used to work and play. Help us to grow healthy and strong. It helps us to stay healthy and fight diseases. We eat different kind of foods that we get from plants and animals. You all know that आप सभी को पता है कि हमें फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, लिव रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। बच्चों, जो ये फूड आइटम्स है, कुछ फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं। फूड को जब आप ईट करते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फूड है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उनको हमने कैटेगराइज करा है कि विच आर अवर हेल्दी फूड आइटम्स और नॉट। नाउ स्टार्ट अवर फूड ग्रुप्स। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। बच्चों, हमने फूड आइटम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, नेक्स्ट वन बॉडी बिल्डिंग फूड, and last one is protective food. Now we should study in detail about these 3 categories. Start with energy giving food. Energy giving food give us energy that is essential for our body. जैसा आपको नेम से पता चल रहा है, जो एनर्जी गिविंग फूड है वो हमें एनर्जी है। They also help our body to stay warm. We need energy to work, play and to do many activities. Wheat, rice, sugar, potato, butter are some examples of energy giving food. बच्चों, जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे आप खेल पाते हैं, लिख पाते हैं, चल पाते हैं। बच्चों, ये आपकी बॉडी को वार्म रखने में, आपके बॉडी टेम्परेचर को मदद कर मेंटेन करने में मदद करते हैं। नाउ लुक एट द इमेजेस ऑफ द एनर्जी गिविंग फूड। फर्स्ट इमेज यू शो इज दैट व्हीट, राइस, sugar, potato, and butter. So these all are food items that comes in the category of the energy giving food. Now come to the next group, bodybuilding food. Bodybuilding food help us to grow big and strong. Just you assume with the name is that bodybuilding food means जो आपकी बॉडी को मेंटेन करने में या बिल्ड अप करने में मदद करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मजबूत। दे बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो आपकी बोन्स यानी हड्डियों को मजबूत करते हैं और मसल्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं। Pulses, milk, cheese, eggs, and meat are some examples of bodybuilding food. बच्चों, look at these images. That images, the dead food items that all comes in the category of the bodybuilding food that makes your body and body bones and muscles strong. Pulses, जो सारी pulses होती हैं यानी दालें,
उनमें प्रोटीन होता है, ये आपकी बॉडी को मेंटेन करने में या स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती हैं। मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चीज, कर्ड, बटर, ये सारे क्या करते हैं, ये भी हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। नेक्स्ट वन इज मीट। Now students come to the next third group, protective food. Protective food help us to stay healthy and fit. They help us to fight against diseases. Fruit and vegetables are example of protective food. बच्चों जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, हमें क्योर करते हैं किसी भी एलिमेंट से, या हमारी बॉडी में किसी जर्म्स को एंटर होने से प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों हमारे प्रोटेक्टिव फूड जिसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्रूट्स, जो भी सारे हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या जो भी हमारी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, और कम्स इन of the protective food. Look at the image of the fruits and vegetables. Now let's see the knowing fact. We should eat foods from all the food groups every day. This is called a balanced diet. बच्चों आपको सारे ही फूड ग्रुप्स में से फूड को ईट करना चाहिए, इसी से आपकी एक बैलेंस डाइट बनी रहती है। बच्चों बैलेंस डाइट का मीन्स होता है कि इसमें आपके एनर्जी गिविंग फूड भी इन्वॉल्व हो, हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड भी इन्वॉल्व हो और प्रोटेक्टिव फूड भी इन्वॉल्व हो। तो आपको ये तीनों ही डाइट में इन्वॉल्व करने चाहिए, तभी एक आपकी बैलेंस डाइट बनती है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ फूड। अब हम समझते हैं जो हमारे फूड आइटम्स हैं, हमारे कौन से फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कौन से फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं। वी गेट फूड मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें अपने फूड आइटम्स दो ही सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फूड फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट fruit, vegetables and greens from plants. They are grown in fields. The person who grown them is farmer. तो स्टूडेंट्स जो प्लांट से मिलते हैं हमें फल, सब्जियां, अनाज, ये सब हमारे लिए किसान यानी फार्मर फील्ड में ग्रो करता है, खेत में हमारे लिए ग्रो करता है। तो हमारी ये फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, farm animals like hens, cows, goats give us milk, egg, meat, etc. Fish are mostly caught from rivers and seas. बच्चों जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे hen, काउ, गोट, वो हमें हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमें उनसे मिल्क मिलता है, एग मिलता है hen से, या हम कह सकते हैं मीट गोट से भी मिलता है। जो फिश होती है वो हम रिवर या ओशंस में से कॉट करते हैं, कुछ हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फिश भी प्रेफर करते हैं। Now students, let's see the knowing fact. Salt, an important part of our food, is obtained neither from plants nor animals. We get it from seawater. The main food of a place is called its staple food. Rice is the staple food of half of the world. बच्चों आपको पता है जो हम खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट डालते हैं अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए, जो ये सॉल्ट है ना ही हमें प्लांट से मिलता है ना ही ये एनिमल से मिलता है। ये हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है, ओशन से मिलता है, समुद्र से मिलता है। हम उस समुद्र के वाटर में से ही सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बच्चों सॉल्ट से क्या बनता है, हमारा फूड टेस्टी बन जाता है। और आपको पता है कि किसी भी प्लेस का जो मेन फूड होता है, स्पेशलाइजेशन डिश होती है, वो उसका स्टेपल फूड कहा जाता है। आपको पता है हमारे वर्ल्ड में हाफ ऑफ दी जो हमारी प्लेसेस हैं या कंट्रीज हैं, वहां का स्टेपल फूड क्या है, राइस यानी चावल। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मील्स इन अ डे। ईटिंग ऑन टाइम इज एज इम्पोर्टेंट एज ईटिंग प्रॉपर फूड। बच्चों टाइम पे खाना खाना उतना ही जरूरी होता है कि आप सही खाना खा रहे हैं उसके लिए। तो स्टूडेंट्स बच्चों हमें टाइम पे ही खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, उसका भी प्रॉपर टाइम होता है। द फूड दैट वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड अ मील। हम किस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे खाना खा रहे हैं वो हमारा मील डिसाइड होता है। We eat 3 main meals in a day. बच्चों हम दिन में 3 बार मील लेते हैं, फूड ईट करते हैं। These are breakfast, lunch and dinner. So students look at these images that we discuss what is breakfast, lunch and dinner. Now the meal that we have in the morning is breakfast. बच्चों जो हम मील सुबह लेते हैं, जब आप स्कूल में आने से पहले जो मील लेते हैं घर पे, वो आपका ब्रेकफास्ट होता है इन द मॉर्निंग। द मील दैट वी हैव इन द आफ्टरनून इज लंच। जब आप स्कूल के ब्रेक या रेसेस में जो मील लेते हैं आफ्टरनून में, वो आपका लंच होता है। लास्ट वन, द मील दैट वी हैव एट नाइट इज डिनर। जब आप क्या करते हैं अपनी फैमिली के साथ रात में बैठ के मील लेते हैं, वो आपका डिनर की कैटेगरी में आता है। Now students, let's see the knowing facts.
मिल्क इज नोन एज द कंप्लीट फूड। आपको पता है मिल्क जो होता है कंप्लीट फूड कहा जाता है। इट कंटेन्स कैल्शियम विच इज गुड अवर बोन्स एंड टीथ। आपको पता है दूध पीने से हमारे जो बोन्स हड्डियां होती है वो मजबूत होती है और टीथ जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं। नाउ स्टूडेंट, let's look the topic vegetarians and non-vegetarians. Vegetarians eat only plants and plant products like vegetables and fruits. Non-vegetarians eat meat of animals like goat and hen. They also eat eggs and some sea animals. बच्चों अब हमारे फल की कैटेगरी भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन पीपल्स आर दोज हु ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। वेजिटेरियंस लोगों को हम कौन से होते हैं जो सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल्स या प्लांट प्रोडक्ट्स ही ईट करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस कौन से होते हैं जो फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी ईट करते हैं, जैसे मीट भी एग भी वो खाना पसंद करते हैं, या सी एनिमल्स को भी वो ईट कर सकते हैं। वो हमारे सारे नॉन वेजिटेरियंस की कैटेगरी में आते हैं। Now, this is the vegetarian food image and this is the non-vegetarian food image. Now come to the next topic, healthy eating. A diet is the food that we eat at a time. बच्चों डाइट जब कहा जाता है जब हम फूड को टाइमली लेते हैं, प्रॉपर टाइम इंटरवल में लेते हैं, एट अ प्रॉपर मील. We should always eat a balanced diet in order to have a healthy food. It means that our diet should contain food from all the three food groups. बच्चों डाइट का मतलब होता है कि जो हमारे खाने में हमारे मील्स में तीनों तरीके की कैटेगरीज के फूड इन्वॉल्व रहते हैं, जस्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव फूड ऑल्सो. वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ब्लड इनसाइड अवर बॉडी. बच्चों आपको पता है जो आपकी बॉडी में खून बनता है, ब्लड सप्लाई होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से. इट हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी. बच्चों जो आपके बॉडी में सारा टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको रिमूव आउट करने में कौन मदद करता है? वाटर. जितना ज्यादा पानी पीते हैं उतनी ज्यादा आपकी बॉडी क्या होती है? हेल्दी होती है, स्ट्रांग होती है. इट ऑल्सो कैरीज फूड अराउंड दी बॉडी. बच्चों जो आप क्या करते हैं फूड ईट करते हैं तो उसको इजीली डाइजेस्ट करने में वाटर ही हेल्प करता है. इट इज एसेंशियल टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. बच्चों इसलिए जरूरी है कि आप रोज 8 से 10 ग्लासेस पानी पिए, जिससे आपका क्या होगी अंदर का सारा टॉक्सिक टेस्ट जो है रिमूव आउट होएगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक द गुड ईटिंग हैबिट्स. These all points you show that is the good eating habits that we follow in our lifestyle. Now look at the first point, eat all kinds of food in proper quantity. हमें सारे ही फूड आइटम्स को प्रॉपर क्वांटिटी में ईट करना चाहिए. हैव योर मील्स एट द प्रॉपर टाइम एवरी डे. हमें अपने मील्स को प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए. मील्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. डू नॉट ईट टू मच, इट मेक यू सिक. बच्चों हमें कभी भी टेलीविजन देखते हुए या मोबाइल गेम्स देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए. इससे हम ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं. डू नॉट ईट टू लिटिल, इट विल मेक यू वीक एंड टायर्ड. अगर आप कम खाना खाएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, इससे आप कमजोर हो सकते हैं, आपके मसल्स बोन्स वीक हो सकते हैं. ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड. स्टेल फूड इज बैड फॉर योर हेल्थ. बच्चों अगर आप बासी खाना खाएंगे, स्टेल फूड खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी जो है क्या हो सकती है? इन्फेक्शियस हो सकती है, उसमें डिजीज हो सकते हैं. इसलिए आपको एक हेल्दी फूड आइटम की करने चाहिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स. बच्चों आपको हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, जिससे कोई भी जर्म्स जो है आपके स्टमक में एंटर ना करें. च्यू योर फूड वेल एंड ईट स्लोली. कभी भी आपको जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए. आपको हर एक बाइट को अच्छे से च्यू करनी चाहिए और धीरे धीरे खाना खाना चाहिए. Rinse your mouth with water after eating to remove food pieces stuck between the teeth. बच्चों जब आप फूड को ईट कर लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी आपके टीथ में फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है तो वो रिमूव हो जाए और कोई भी बैक्टीरिया वहां पे बर्थ ना ले. नाउ डू नॉट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स. आपको कभी भी स्ट्रीट फूड नहीं प्रेफर करना चाहिए. दिस फूड कलेक्ट डस्ट एंड फ्लाइज, इट कैन मेक यू सिक. बच्चों जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहां पे डस्ट आके बैठ जाती है, फ्लाइज आगे बैठ जाते हैं, जो क्या करते हैं जर्म्स बैक्टीरिया जनरेट करते हैं. अगर आप उन फूड आइटम्स को ईट करेंगे तो इससे आप अनहेल्दी हो सकते हैं. नाउ ईट फूड इन अ क्लीन प्लेस एंड क्लीन यूटेंसिल्स. आपको हमेशा जो फूड खाना चाहिए क्लीन प्लेस, साफ सुथरी जगह पे या साफ बर्तनों में ही ईट करना चाहिए. These all are the good eating habits that you should follow in your lifestyle. Now students, come to the moral of the chapter. इस चैप्टर से हमने क्या सीखा उसे एक बार देख लेते हैं.
A healthy food includes everything that provides essential nutrients to the body. It keeps our body fit and healthy. बच्चों एक हेल्दी फूड आइटम वो होते हैं जिसमें सारी ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाते हैं. Now students have a quick look on the following points. Your first point is food give us energy to work and play and make us active. हमने पढ़ा फूड से हमें एनर्जी मिलती है जो हमें काम करने में, खेलने में, हमें एक्टिव रखने में मदद करती है. एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स आर द मेन फूड ग्रुप्स. हमने 3 फूड कैटेगरीज के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा जो हमें अपनी बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व करनी चाहिए. एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी. एनर्जी गिविंग फूड क्या करते हैं, हम एनर्जी देते हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज यानी प्ले, राइड, वॉक ये सब कर पाते हैं. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स. बच्चों हमें फल, सब्जियां, ग्रेन्स कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं. और हमें मिल्क, एग, मीट ये कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद. चू योर फूड वेल एंड ईट स्लोली. हमें धीरे धीरे चबा के अपनी बाइट लेनी चाहिए जिससे इजिली हमारा फूड हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो. ईट फूड इन अ क्लीन प्लेस एंड अ क्लीन यूटेंसिल्स. हमें हमेशा खाना जो है साफ जगह और साफ बर्तनों में खाना चाहिए जिससे कोई भी जम्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.